है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चीर झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रत खंबीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भरने गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। So today we are discussing schedule 3 of Companies Act Division 1. So basically these are the formats of companies' financial statements. The companies who are basically following the accounting standards, not Indian accounting standards. So all our three speakers will take on one by one their presentations, and I will be supporting wherever required. Yes. So good afternoon, everyone. Today, I, Devika Shah and Tanya Gupta and Divya Kirtani will give a comprehensive guide to the Schedule 3, the financial statement presentation. It basically covers the format of the balance sheet, profit and loss account, and notes to accounts, and the CFS. It is basically for the companies who are following the accounting standards, which are not following Ind AS. So let's get right into it. So first, let us understand the purpose and structure of the Schedule 3. The Schedule 3 basically covers the minimum requirements for the preparation and presentation of the financial statement. It tells us what are the minimum disclosure which are required for a company to disclose. It does not provide an exhaustive list. It is inclusive. If any disclosure which are required by the accounting standards need to be disclosed, then they are additionally to be provided. So, a question for the online participants. अभी तो कुछ बताया Yeah. नहीं. Divyan Sharma. So what is the main purpose of Schedule 3 of the Companies Act? Divyan Sharma. To prescribe the format of financial statements. Answer is B. Yes, that is correct. Okay.
So the next is the applicability of the Schedule 3. The Schedule 3 applies to all companies who are following the accounting standards. It is mandatory for the annual financial statement as well as the interim one. Let's just say a company is preparing the interim financials. They are required to follow AS 25 as we all know. Now, as per AS 25, they can follow the condensed format or they can follow the annualized one, the complete format. If they are following the condensed one, they have to include all the headings and subheadings. And these headings or subheadings should be those which are disclosed in the annual as well. And annual is following the Schedule 3. So indirectly, the interim is also following the Schedule 3 format. The next is the comparative information. They have to disclose the comparative information as well. Let's say there's a company ABC and they are preparing the financials of the financial year 24-25. Then they are required to disclose the data of the previous year as well. That is the 23-24 data is also to be disclosed for the comparison purpose. So wherever there is any figure given in the notes, so comparison doesn't mean that comparison only of those columns. Any figures which have been given in the notes, for that also a comparative figure should be there. That is, last year these things were there. So many times we find that particularly in presentation related to the property, plant and equipment, for the entire year, for the current year, there is always, a detailed table wherein we have plant and machinery, buildings, land, and that entire reconciliation is there, opening balances, additions, reductions, gross block, then depreciation, opening balance, accumulated depreciation for the depreciation for the year, then accumulated depreciation, then closing balances. For each line item is there, but at the same time, for previous year figure, only one line is there, that is in aggregate. So many times these disclosures, the disclosures are in this way. So that disclosure is not correct. The entire table which was there and which is there for this year should also be there for the previous year. Yes. Okay, next we are covering the exemptions. Which are the companies which are not required to follow the Schedule 3? First, there is the insurance company. As the insurance company is regulated by the Insurance Act, that prescribes the statement that how they are to be prepared the profit and loss and the balance sheet. Second is the banking company. They are regulated by the Banking Regulation Act. And third is the company which are engaged in generation and supply of the electricity. Now, however, these electricity companies are regulated by the Electricity Act 2003. Such act does not provide a specific format of the balance sheet and profit and loss. So it is up to the company to follow the Schedule 3. It is the discretion of the management that they can follow the format as per the Schedule 3. So basically all electricity companies have to follow Schedule 3 only because there is no prescribed format as such in the Electricity Act 2003. And for the other two companies, banking as well as the IRDA, insurance companies, for insurance companies, IRDA has provided a different format for the purpose of financial statement. So we need to follow that. So next we will be covering the general instructions for the preparation. First, let us understand what is the stature of the Schedule 3. What are the powers of the Schedule 3, basically. So to brief it up, the Schedule 3 does not override the accounting standards. Like generally, as per the guidelines stated in the accounting standards, the law will prevail the accounting standard. If there is any conflict between the accounting standard and the law, it is the law that overrides. However, the Schedule 3 is an exception. If there is a conflict between the accounting standard and the Schedule 3, the Schedule 3 requires that it needs to be modified, it needs to be substituted in conformity with the accounting standards. So let's take an example of it. Suppose we all know cash and cash equivalent. We have all studied the AS3 cash flow statements. So can anyone tell me what is the definition of cash and cash equivalent? Anyone? What covers cash and what covers cash and cash? Short-term, highly liquid investments that are readily convertible into cash. That is correct. So it is stated in the cash flow statement AS3. However, in the Schedule 3 has bifurcated the cash and cash equivalent into the cash balances, the bank balances which have a maturity of more than 12 months.
and margin money and security against borrowing as well. However, this is not in conformity with the definition as prescribed in AS3, because AS3 says cash defines cash in hand and demand deposit, and cash equivalent defines the highly liquid investment, whichever maturity of less than 3 months. And both of them does not cover the margin security or the margin money against the borrowings. So there's a conflict between the Schedule 3 and AS. So in this, the accounting standard will prevail. And the recommendation is that the company can rename the caption to cash and bank balance. And then they further can bifurcate into the cash and cash equivalent and other bank balance. Next comes the external disclosure. So we study that if there is any conflict between the accounting standard and the Schedule 3, then the accounting standard will prevail. Now, what if there is a conflict between the Schedule 3 and other acts, other statutes? So it is stated that the external disclosure will required to be disclosed in the Schedule 3. Means the Schedule 3 needs to be modified as per the external statute as well. Like take an example of MSME Act. As per MSME Act, there is a requirement of to disclose the amount which are due to the micro, medium and small enterprise. Now, it was not earlier stated in the Schedule 3. But as per the 2021 amendment, it has been changed and it has been added because it was required as per the MSME Act. Question for the online participant. Hardik, Which of the following statements is correct about the precedence between accounting standards and Schedule 3? Hardik Sir. Khandelwal. Am I audible? Yes. Sir, the option is accounting standards override Schedule 3 in case of conflict. Option B. Thank you. Okay. Next comes the preparation of financial statement. What rounding off will be done? So the applicable mandatory rounding off is based on the total income of the company. If the total income is less than 100 crore, then they are to be round off to the nearest 100,000 lakhs or millions. And if the total income is more than or equal to 100 crore, then the rounding off is to be done to the nearest lakh, million or crores. So this rounding off is mandatory. So if you will go for audit this year, and maybe it is the first year of audit, then you need to ensure that it has been rounded off. So पुरानी audit से वहाँ तो already round off ही किया होगा, but you still need to check whether the rounding off is done or not. Suppose in any audit rounding off is not done, then this year it has to be get corrected. क्योंकि पिछले साल हो सकता है कहीं कोई किसी के नजर में नहीं आया हो. But this rounding off requirement is now mandatory even for companies who are following accounting standards. Earlier it was mandatory for companies who are following Ind AS. So in Division 2 it was mandatory. Now they have made mandatory in Division 1 also. Now this rounding off is not only for the balance sheet and profit and loss account. It applies to the notes to accounts as well. Yes, that is very important. So whenever, whatever rounding off decision is applied by the company, suppose it is into hundreds, thousands or lakhs. So in same denomination, rounding off should be there in the notes. It cannot be like this that in books you are in, on the face of the balance sheet, you are rounding off in hundreds, and in notes, even those tax notes, you are rounding off in lakhs, or you are giving full figures. So there has to be a symmetry between the rounding off throughout the entire financial statements. And we need to also mention that these are rounded off on the profit and loss. So all the notes everywhere we need to mention. But somewhere, suppose like in EPS, it is not mentioned because EPS is given in rupee terms only. So then we need to mention that it has been given in rupee. Next, we will be studying the fundamentals of the classification, that how the assets and liabilities are classified, how they are classified into current and non-current.
First, let us gain an understanding of the operating cycle. So anyone knows what is an operating cycle? We have learned this in Inter and from 11. What is operating cycle of becoming a chartered accountant? कितना operating cycle है? 4.5 years. 4.5 years. I would say 21 years. उस दिन ही तय हो गया ना आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, है? But yes, anyway, jokes apart, once you start, it is 4.5 years operating cycle. तो कैसे हुआ वो, कैसे तय हुआ? अब बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है? मटेरियल परचेज करने से लेकर रियलाइज The day you purchase your material till realization of cash, है ना? तो उसमें आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग और वो नहीं रहता है। रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो जो भी उसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, देन we sell it, then debtors are there, then debtors are recovered. So that entire term is Operating cycle. operating cycle. Like Devika is speaking on this. Yeah. So operating cycle, as Sutak said, it is correct that it is the time which is elapsed between the acquiring of the asset for processing and the realization in cash and cash equivalent. Means it is the time which is required from acquiring the asset to conversion it into the cash and cash equivalent. Let us suppose we have a company, a manufacturing company. So the first manufacturing company will purchase the raw material. Now this raw material is converted into the work in progress. Let's say it takes 15 days to conversion. The work in progress is again converted into the finished goods. Again, 15 days for the conversion. The finished goods are then sold to the customer. Let's say all the sales are made by credit, and it takes 1 month from the conversion of finished goods to the sales. And the realization of the trade receivable takes another 1 month. So in this, the operating cycle will constitute of 3 months from the conversion of raw material to again convert it into the cash and cash equivalents. Now, if the operating cycle cannot be clearly identified, then we assume that the operating cycle is of 12 months. The company, it is recommended for the company to disclose their operating cycle period. Now, suppose a company has different segments and every segment have different operating cycle. Then the company will classify the non-current and current as per different segments as per their different operating cycles. But operating cycle depend on the industry. Generally कितने समय का हो सकता है? 3 महीना? कितना होगा? ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स भी हो सकता है या नहीं हो सकता? कहाँ पर हो सकता है? Capital intensive industry, capital goods produce करते हैं, like ships, aircraft, वहाँ पे बहुत लंबा होता है। wine business, Wine business, alcohol, real estate sector, है ना? Capital intensive अगर कोई बना रही है, जैसे ना एयरक्राफ्ट बना रही है, तो ये हो सकता है कि वहां पे मोर देन 1 ईयर हो। बट कोई कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने में 4 साल लग गए, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल उससे तय नहीं होना। वहां कैपिटल इंटेंसिव थिंग्स आर देयर, बट ऑपरेटिंग साइकिल इज बेसिकली विद रेफरेंस टू द कमोडिटी इन विच यू आर ऑपरेटिंग, उसके रेफरेंस से। तो वहां पे जैसे मान लो कैपिटल इंटेंसिव है ना, एनटीपीसी इज देयर, पावर प्लांट है, 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं बनाने में। बट एट द सेम टाइम व्हाट वी नीड टू सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्ट्रिसिटी, कि वो जनरेट करके और उसका पैसा कब रियलाइज हो जाता है। Okay, let's take an example. If the operating cycle of a company is of 6 months and the trade receivable requires realization of 8 months, then whether it is a current or non-current? Current. Because we considered the operating cycle normally of 12 months. So if it is covering within 12 months, then also it will be classified as current. So it is beyond the operating cycle period. But like suppose, as she said, that debtors you are recovering
within 8 months. Suppose you are going to recover debtors within 12 months, then what is the, whether it will be current or non-current? After 12 months, you are going to recover the debtors. Non-current if the operating cycle is So within 12. then you need to see that whether my operating cycle is more than 12 months. There may be some exceptional, and you have identified that yes, this debtor I will be, because of the agreement with the debtor, I will be recovering at a later date. So by exception, that is a non-current. But suppose it is a regular feature, then your operating cycle should change. Because in your case, the recovery is after 12 months. It is a regular period. The moment it is a regular period, you should change. और भी लोग नहीं है क्या? सबको बुला लो ना, एक एक करके क्यों आ रहे हैं? नहीं कोई नहीं, क्या हुआ? कोई नहीं दिख रहा काफी जने थे पहले. उधर अंदर सुबह से उधर साथ उधर काम पर बैठे हैं बैठे. उनको सबको मंडे को तेरे को दिखा, वो ये रिकॉर्ड दिखाना, ये हाँ, नहीं हाँ. Okay, so moving on. First, I will be covering the equity and liability. So I'll be describing the what is liability. First, let us understand what is current liability. Current liability is a liability which satisfies any of the following criteria. Firstly, if it is expected to be settled within the company's normal operating cycle, or it is primarily held for the purpose of being traded, or it is due for settlement within 15 days, within 12 months. These 3 points you have already learned. You have already know that if it is settled within operating cycle, then it is classified as the current liability. Now, the problem comes with the fourth point. The fourth point states that if the company lacks an unconditional right to defer settlement for at least 12 months, then it is classified as a liability. It means that the company does not have a right to defer payment. It has to make the payment within 12 months. Then we classify it as a liability. For this, I have taken a case study of loan covenant. Loan covenants are basically the conditions pertaining to the loan. For example, a company has taken a 5-year loan, and in the terms, it is stated that the company is required to give quarterly financial information to the bank. If the company fails to do so, the bank has the power to recall the loan and has the power to demand repayment at that time. Okay. So let us take 3 cases for this. First, let us take that the company has made a default in the quarterly financial information. They have not supplied the quarterly financial information. And the company and the bank is not demand for the repayment. It will be converted, it will be classified as a current or a non-current. Anyone? Like should I repeat? Okay. So there is an agreement, and in the agreement terms, it is stated that the company is required to file a quarterly financials. During the last quarter, the company fails to file the quarterly financials to the bank, and bank does not exercise its power to demand repayment of the loan. So whether it is classified as current or non-current. Why? क्योंकि वो डिमांड नहीं करे उसके ऊपर बेस नहीं होता ना, ब्रीच होते ही करंट में चला गया, कंडीशन तो ब्रीच हो ही गई. But the company does not demanded it. वो डिमांड नहीं करी, उसके ऊपर वो बाद में करना. Okay, let me define it a bit more. Let me define it a bit more. The management expects that the bank will not ask for the repayment. From the past experiences, they know that the bank will not ask for the repayment. डेफरमेंट का राइट आंसर. But still, okay. So in this case, actually, it will be classified as non-current because the company has, due to the past experiences, know that the bank will not exercise its power. Yeah, but the financials are prepared and the financials are approved. Even if after the approval of the financials, the bank demands for repayment, then it's a non-existing event because the financials are approved. And if the bank demands for the repayment before the approval of the financials, then you will classify it as current. As per India's one तो वो क्लासिफाई तो होगा ही, करंट में ही जाएगा, ब्रीच होते ही करंट हो गया. First, can you repeat the question?
वन के अथॉरिटीजन की जहाँ ब्रीच हुई कंडीशन डिमांड लेवल हो गया तो फिर करंट में क्या वो तो बाद में देखेंगे. So I think Devika, the provisions were like this, that suppose you have reached the, filing of the financial statements or the current stock, current asset statement. And but before approval of the financial statement, The bank is not demanded. not bank has demanded, you have submitted the statements. Not bank has demanded. On 31st March, you are having the breach of the condition, but before approval of the financial statements, you have filed the relevant documents with the bank. So since that breach is not there, as on the date of the approval of financial statements, I think the schedule says that in that case, it can be classified as non-current. But suppose the condition remained as breached condition, then it should be classified as current, because you do not have right to defer in that case. आपके पास में डेफरमेंट का राइट नहीं है, और वहां पे कंडीशन क्या है कि जब तक आपके पास में डेफरमेंट का राइट नहीं है तो इट विल बी क्लासिफाइड, द लायबिलिटी विल बी क्लासिफाइड एज करंट. गाइडेंस नोट में आप जो कह रहे हो वैसा दिया हुआ है या क्या है? जैसे मैंने बोला वैसे दिया गया है कि तो इन्होंने बेसिकली ड्यू टू द मैनेजमेंट का अगर पास्ट एक्सपीरियंस है एंड दे नो कि जो बैंक वो नहीं करेगा. थोड़ा जब इंस्टीट्यूट ने एक्चुअल में तो जो बाकी लोग कह रहे हैं बात तो वर्बटम अगर बात करें तो वही सही है, बट इंस्टीट्यूट ने क्या करा कि दे हैव क्लासिफाइड दीज नॉन कंप्लायंसेस इनटू टू सेट्स ऑफ नॉन कंप्लायंसेस. एक ये कह दिया कि साहब मटेरियल ब्रीच है और कुछ इमटेरियल ब्रीच है, ये कहीं लिखा हुआ है. आई वाज एक्सप्लेनिंग इट लेटर. तो जो इमटेरियल ब्रीचेज है ना उसमें कि साहब स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया, एंड रेगुलर फीचर इज दैट कि साहब स्टॉक स्टेटमेंट वैसे ही थोड़ा डिले सबमिट करते हैं, फिर भी बैंक कॉल नहीं करता है. जनरल प्रैक्टिस इज नॉट दैट टू कॉल फॉर सच स्टेटमेंट बाय द बैंक. उनको पता है ये थोड़ा लेट ही आता है ना. बैलेंस शीट नहीं दी तो पता है ये थोड़ा लेट ही साइन होकर के आता है. सो दे सेड दैट दीज आर कंसीडरिंग द इंडियन प्रैक्टिसेस. इंडियन सिनेरियो में ये दीज आर द इमटेरियल ब्रीचेस जो होते रहते हैं, है ना. अपने यहाँ रोज रेड लाइट क्रॉस होती है, कोई चालान नहीं होता. तो दैट्स हाउ थिंग्स आर देयर. तो उन्होंने ये बेसिकली ये कहा कि साहब ये यहाँ पे इसमें चालान नहीं है, भले ही उन्होंने ब्रीच कर दिया. तो नोबडी इज गोइंग टू कॉल योर लॉन. पर सपोज आपने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल ब्रीच. तो इंडेस के अंदर इसको डिफाइन नहीं किया, बट गाइडेंस नोट में इन्होंने इसको थोड़ा इस तरीके से लिया है. तो wherever there are immaterial breach, वहां उन्होंने कहा है कि लेट थोड़ा सा इसको लिबर्टी इन्होंने इसमें दे दी कि आप उसको नॉन करंट क्लासिफाई करिए, और जहां मटेरियल ब्रीच है देयर कैन नॉट बी एनी स्केप, वहां तो आपको इसको करंट क्लासिफाई करना है. आ गया समझ में भाई? So explained by Bhupendra sir. So I'll be moving to the next topic. नहीं तू अपना एक्सप्लेन कर वैसे. तो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. अरे फिर वापस कर दे, कोई बात नहीं, एक बार और आ जाए. Okay, so तेरी तैयारी की हुई है ना, वो तो ये लोग अटक गए इसलिए I came here to help. so the filing of the quarterly financials was an immaterial dispute. If there is any material breach, then it will be classified as current, whether irrespective whether the bank is demanded for the repayment or whether it is not demanded. बट ये शेड्यूल 3 में नहीं दिया हुआ है मटेरियल और इमटेरियल. ये इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट थोड़ा कार आउट लेके आ गया इसके अंदर टू हेल्प द मेंबर्स और टू हेल्प द ऑडिटिंग. क्योंकि आप देखिए इम्पैक्ट क्या है. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड नॉन करंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज? क्या इम्पैक्ट है, कोई बताएगा? उस पे ध्यान दो आप. करंट लायबिलिटी को करंट क्लासिफाई करना ठीक है या नॉन करंट? व्हाट इज द इम्पैक्ट? यस, अपना दिमाग वहां चलना चाहिए. करंट नॉन करंट तो ठीक है, आप थियोरेटिकली इनको बता दोगे. इम्पैक्ट क्या है? नॉन करंट से करंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सारा फाइनेंशियल रेशियो बिगड़ जाएगा उसका.
कि साहब मुझे तो इमीडिएट लाइबिलिटी का पेमेंट करना है. सो रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब थोड़ा वीक फाइनेंशियल पोजीशन है इसका. मोमेंट करंट रेशियो जो है वो एडवर्स है, तो इम्पैक्ट वहां जाता है. तो जो ही आप उसको करंट बोलने के लिए बोलोगे ना, क्लाइंट कहेगा नहीं नहीं साहब ये तो करंट नहीं. ऑलवेज ही विल ट्राई टू क्लासिफाई द लाइबिलिटी एज नॉन करंट, पर्टिकुलरली जो लोन लाइबिलिटीज वगैरह, so that he can show कि मेरे को पेमेंट बाद में करना है. Okay, so moving on, I'll be explaining a classification of conversion options. Let us take that there is a convertible debt. Now, convertible debt is two types. Either the conversion option is with the issuer or the conversion option is with the holder. So first, we are looking at the conversion option with the issuer. If the conversion option is with the issuer, is with the company, then the classification is based upon the repayment period. Suppose there is a debentures which are to be repayable within 3 years. However, the company has an option that it can issue equity shares, it can convert it into equity shares at any time. So we will look at the repayment period. Since the repayment period is of 3 years, it will be classified as non-current. Okay. Then looking at when the option is with the holder. Now, if the option is with the holder, we will look at the cash settlement. Suppose the company issues the debentures in which the conversion option is with the holder and they are to be repaid in 3 years. Then we will look at the repayment period, which is 3 years, and we will classify it as the non-current. Next comes the balance sheet. Now we will look at the format of the balance sheet. I'll be discussing of the equity and the liability. First, equity constitute of the shareholders fund. Shareholders fund constitute share capital, reserve and surplus, and the money pending for allotment. So share capital is further bifurcated into the authorized capital, issued capital, and subscribed capital. Authorized capital is the maximum capital which the company is legally permitted to issue. It is stated in the memorandum of association of the company. Out of the authorized capital, the portion which the company issue to the investors is the issued capital. And next is the subscribed capital. The amount of the issued capital which is actually subscribed by the investor is the subscribed capital. The subscribed capital is further divided into the fully paid up and not fully paid up, partially paid up. Can issued capital be higher than authorized capital? तो ऑथराइज कैपिटल इन्होंने कहा कि मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है, वो जब पहली बार होता है फंड, उसके बाद में ऑथराइज कैपिटल जो है वो अगर कोई बढ़ा रहा होता है तो हाँ, उसका रेलेवेंट जो भी फॉर्म्स हैं और जो भी पैसा तो उसके लिए बेसिकली क्या स्टैम्प ड्यूटी का एक्सपेंडिचर होता है व्हेनेवर समवन इज इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल. तो आपको डिस्क्लोजर के टाइम ये भी ध्यान देना होता है. इट इज नॉट अ परमानेंट डिस्क्लोजर कि पिछले साल जो आया था वही इस साल आ जाएगा. इवन क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आपने ऑथराइज कैपिटल मान लीजिए उन्होंने बढ़ा दी और आपने उसको डिस्क्लोजर में नहीं दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा. क्यों नहीं पता चलेगा? अगर ऑथराइज कैपिटल है, यस, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज ओनली डिस्क्लोजर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इश्यूड कैपिटल का इंपैक्ट आता है. तो ऑथराइज कैपिटल को आपको चला करके उसको पूछना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा और आरओसी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि इनका ऑथराइज कैपिटल कितना है. सो दिस इज एन ईयरली एक्सरसाइज, अदरवाइज वी कैन मिस. क्योंकि हो सकता है ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है, पहले उन्होंने 10 लाख की इश्यूड कैपिटल 10 लाख है, इस बार फिर 10 लाख और इश्यू कर दी. बट सपोज दे हैव इवन देन इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल, so you will not be able to know about it. So the company is required to disclose the authorized capital, issued capital, and subscribed capital in its notes to accounts. Along with there should be a clear breakdown of each class of shares, preference shares as well as equity shares. Okay. So moving on, the company is also required to disclose the share capital reconciliation. They should disclose the opening balance, any new issue buybacks, any movement within the shares, and the closing balance at the end of the reporting period. The company is also required to disclose the major holding disclosure, that how many number of shares are held by the holding company, by the fellow subsidiaries, and by the ultimate holding company.
They are also required to disclose the detailed list of all the shares who are holding more than 5% of the total shares. And whenever there is buyback of shares or there is bonus issuance of shares, they need to continue these disclosures for how many years? Next 5 years. Next 5 years. क्यों कैसे भूल गया मैं? ये तो चलो मेरे को याद है, पता नहीं कब से पड़ी है. So we need to. I next my. अच्छा, It's explain in the next slide. तुम्हें भी ध्यान नहीं है इसमें क्या क्या है. ये इधर आके. So, if there is any non-cash allotment, bonus share allotment or buyback, then the company is required to disclose it for the next 5 years. The company is also required to disclose the shareholding held by the promoters. They will disclose the name of the promoters, the number of shares held by them, and any percentage change during the year. So, related to shareholdings, there are two type of disclosures. One is the shareholders who are holding more than 5%. So that may include non-promoters also. And here the shareholding who are by the promoters. So even if any promoter has less than 5%, then also disclosure is required because he is the promoter of the company. Question for the online participant. So what must companies disclose for share capital reconciliation? Devanshu. Only closing balance, opening balance, new issue, buyback and closing balance, only number of shareholders. Devanshu. Divyansh Maurya. Divyansh Maurya. चलो इनको तुम मंडे को बुला लो और आप लोग बताओ. ऑप्शन सी. बहुत इजी क्वेश्चन करती है. Okay. So next head we will be covering is the reserves and surplus. ये दिव्यांश कुछ बोल रहे हैं हमारे. Sir. हाँ क्या हो गया? मंडे को नहीं आना तेरे को? हेलो. Hello. मंडे को देख लेगा तू रिकॉर्डेड क्लास? सर वो ऑन नहीं हो रहा था माइक. मैं तो मंडे की रिकॉर्डेड क्लास देखनी क्या तेरे को? यस और नो? नो सर. चलो फिर इसका आंसर दे. Sir C, opening balance, new issues, buybacks and closing balance. ठीक है, अगला सवाल भी तेरे से ही पूछेंगे, इसलिए बात बच जाना बिल्कुल. चलो. Okay, so reserve and surplus are further classified into the capital reserve, security premium, revaluation reserve, and the balance in the profit and loss account. If there is a debit balance in profit and loss account, then it is shown as a negative amount. The company is also required to disclose the movement during the year. So they will disclose the opening balance, the movement, as well as the closing balance at the end of the reporting period. If a reserve is earmarked for an investment, then it is classified as fund. Next, we will be covering the application amount pending allotment. It is also covered in the shareholders fund. It is the amount which we have received, but the shares are yet to be allotted. So they are disclosed separately in the shareholders fund. And then there's share warrants. Share warrants are a financial instrument which gives the holder the right to acquire the share, equity shares. They have not exercised that right, but they have the right to acquire them. So that is why they are not disclosed in the shareholders fund. They are just shown as a separate line item in the balance sheet. Okay, next we are going towards the liability. So first, classifying the long-term borrowings. The borrowings are classified into the debentures, the term loans, deferred payment liability, deposits, and loans from the related party. They are further bifurcated into the secured and unsecured. And if
they are secured, then the nature against which asset they are secured, they are required to disclose the same. Okay, so long-term liabilities, the company is required to disclose the security details. They are required to disclose the term of repayment, whether it is a 15 months repayment term, 12 months repayment term, they are required to disclose that. If an aggregate amount, if they are guaranteed by the directors or to others, then an aggregate amount is also required to be disclosed in notes to accounts. If the company, suppose the company is engaged in continuing default in the repayment of principal or interest, so the company is required to disclose the fact of the same. Next is the other long-term liabilities and the long-term provisions. First, the long-term liabilities. Other long-term liabilities covers the trade payable, which are payable after 12 months. And other than non-trade payables, which can be the statutory pays or payable for PPE or accrued interest, whose payment is not due within 12 months, but will be payable after 12 months. Other is the long-term provisions. Long-term provisions comprises of two things. First is the provision which is liable to the employee benefits, and other are the other long-term provisions. Employee benefits can be the gratuity payment. Since the gratuity, the company makes payment of the gratuity yearly, but they are paid after the employee retires. So it is a long-term payment, and thus it covers in the long-term provisions. The other long-term provisions can be the provision for warranty. Again, suppose a company has make a warranty of 2 years, and it is expected that the customer will exercise that warranty after 1.5 years. Then it will be classified as a non-current, as a long-term provision. तो अगर अपन बात करें बोरोइंग्स की, अपन 2 स्लाइड पहले से बात करें, तो इन्होंने कहा कि सर बोरोइंग्स करंट और नॉन करंट में लेके जाओगे और इनकी शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट भी आप बताओगे. तो हाउ वी विल असर्टेन द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट? शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट कहाँ से मिलेगी अपन? लोन स्टेटमेंट, बैंक्स के जो सैंक्शंस लेटर है उनसे, है ना. टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, सिक्योरिटीज, एवरीथिंग वी विल गेट फ्रॉम बैंक लेटर्स. तो ये भी आपको देखने होते हैं when we are auditing. So then we need to see whether whatever disclosure have been made are supported by the arrangement with the bank. क्योंकि वो भी चेंज होता रहता है. कई बार हो सकता है कि कंडीशंस चेंज हो गई. So then we need to ensure that yes, updated conditions are mentioned in the financial statements. और जितने भी रीपेमेंट शेड्यूल्स हैं, तो उसमें आपको जो भी मोर देन 1 ईयर पेमेंट हो रहा है, तो आपको रीपेमेंट शेड्यूल का पूरा शेड्यूल बनाना चाहिए. Rather, clients should make the schedule that yes, particularly in case of long-term loans which are taken for the purpose of fixed assets. So whatever schedule is there, the schedule should be there in your hand, and then you need to see that yes, 3 installments, 4 installments are coming in the next year from 31st to next 31st, from 1st of April to the next 31st March. So whatever installments are coming, their aggregate should go to the short-term borrowings, to the non-current portion of the long-term borrowings. So next is the short-term borrowings. Okay, the short-term borrowings are classified into the loans repayable on demand, the loans that we have received from the related party, deposits which are of short-term in nature, and other loans. So if nothing is agreed with related party, they are all Comes in the other loans. short-term loans. So earlier, before the amendment, the current maturities from the long-term borrowings was earlier disclosed in other current liabilities. Now, however, after the 2021 amendment, they will be disclosed in the short-term borrowings. So we basically bifurcate the long-term borrowings into the maturities which are due in the next year and the residual amount. The residual amount will be shown in the long-term borrowings and the current maturity will be shown in the short-term.
Next is the trade payable aging requirement. The Schedule 3 mandates a disclosure of the trade payables, that how many trade payables are due within have an outstanding amount of less than 6 months, less than a year, from 1 year to 3 years, and more than 3 years. This basis of aging is on the basis of the due date of payment. When was the last payment made? After that, we will make the outstanding amount disclosure. So here important is how we will audit that its aging is correct or not. So everywhere you need to see that what was the due date of payment. So in case there is no due date mentioned as such in the invoice, the date of invoice is the due date of payment. So wherever accounts are on tally and all that, everywhere you need to identify that what is the due date of payment, and wherever suppose it is through system, maybe somewhere some ERP is used by the client, and in that system they are putting the due date. So whether those due dates are properly put there, they have put in the system or not. So that audit is required to be done. Because from the due date only you have to ensure. So here, if you have seen that format, they have given the column about aging, but suppose something is not due. So for that, the column is not there. Something is not due, that column is not there, then guidance not that suggested, I am not sure, that you need to mention a separate column that these are the amounts which are not due, because otherwise how we will reconcile with the total trade payables. So amounts which are not due, one column, then whatever aging period is there, that you need to mention. So from audit point of view, we need to see whether what is the due date. So the trading payable aging schedule is also classified in the MSME dues, the dues which are related to the MSME, and dues which are related to other suppliers. And these classifications are again very important. So for audit purpose, we need to see whether proper mechanism has been developed by the client or not, for the purpose of identification of the parties or those trade payables, whether they are falling into this MSME category or not. So we need to first see that what is their process. Suppose they have not identified and there is no process. So then there are different implications. Implications related to disclosure over here, which we shall not be able to actually disclose until and unless they have the process and they have identified it. And then implication in the income tax law. क्योंकि वहां पे भी अगर कोई पेमेंट टू MSME लेट हो रहा है या नहीं हुआ है, so then there are certain provisions related to the disallowance of expenditure. So those are the implications. तो हम जब भी कोई ये classification, presentations, everything is okay, वो ठीक है. But until and unless we are not able to, judge and assess the consequences of any of the non-compliance, तो हमारा ऑडिट अधूरा रह जाएगा. आप सिंपल क्या करोगे, सिंपल इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया, ओके, बट मोमेंट इंफॉर्मेशन हैव कम, देन यू नीड टू अप्लाई योर माइंड आल्सो. यार अब इसका कोई और तो कॉन्सिक्वेंस नहीं. यस, डिस्प्यूटेड नॉन डिस्प्यूटेड, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि कोई ट्रेड पेबल डिस्प्यूटेड है या नॉट डिस्प्यूटेड है? तो आप जाकर के देखोगे, लीगल के खर्चे देखोगे या लीगल केसेस देखोगे, क्या क्या आपके लीगल केसेस चल रहे हैं. तो यू नीड टू कॉल फॉर, और मोमेंट समथिंग इज डिलेड, 6 महीने के बाद अगर पेमेंट 6 महीने तक भी नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है. सो देन यू नीड टू इंक्वायर मोर कि साहब ये इतना पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, क्या बात है, डिस्प्यूटेड तो है क्या? या ये भी हो सकता है कि साहब आपने जो पैसा एक्चुअल में देना ही नहीं है, आपने बस ये खड़ा किया हुआ है, फेक एंड पेड, आपने खर्चे डाल दिए और इधर
ट्रेड पेबल डाल दिया, आप 3 साल से पेमेंट तो कर ही नहीं रहे। Yes. So question for online participants. Manas. Manas Nair. Trade payable aging analysis is calculated based on invoice date, payment date, due date of payment, or date of purchase order. Manas. ये वही नहीं आ रही, बोलते रहो। मानस नायर। No, no. He's trying to speak, but Manisha. Yes, sir. The answer is C, due date of payment. That is correct. I think Manas is also trying, but hey. So this is a required format and illustration of how the trading payables are to be classified. They are classified into MSME, other disputed dues with MSME, disputed dues with others. Outstanding amount which is less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, and more than 3 years. Next comes the other current liabilities. Now the other current liabilities are not specifically classified, but we covered all the liabilities which are not classified in other head, then comes in the other current liabilities. For example, there is the financial lease obligations, current maturity of the financial lease obligation, unpaid matured deposits and debentures, unpaid dividends. The interest accrued but not due on borrowings is also covered here. The interest due as well as accrued on borrowings is also stated in the other current liabilities. Both are stated in separate line items. Advance and security dues, income received in advance, will also be covered in other current liabilities, and any statutory dues which are outstanding will be covered in other current liabilities. Next comes the short-term provisions. Short-term provisions are further bifurcated as we have bifurcated the long-term provisions. They are bifurcated in a similar manner. The provision for the employee benefits and the other provisions. Provision for employee benefits can be short-term, like there are accumulated leaves. And the accumulated leaves are expected that the customer will exercise it in the next year. So it will be classified as the current liability, as the provision for the employee benefit. Next, the other provisions can be of the provision for tax, income tax, provision for warranty. So to sum the whole slide up, we understand about first what is the nature of the Schedule 3, what are the powers, what are the statutory status of it. Then we understand how the current and non-current are classified. Then we understand about how they are disclosed, how the equity is disclosed, and how are the liabilities disclosed. The asset will be further discussed by Tanya. Question for online participants. Harsh and Satvik. Harsh and Satvik. Lakhs, million or crores. Not in hundreds or thousands. That is correct. Thank you. So hello everyone, myself Tanya Gupta. Now continuing the balance sheet as was started by the Devika Shah. So now I am presenting here the asset side of the balance sheet. So first of all, main core principle is the bifurcation into non-current and current. As explained by Bhupendra sir, that bifurcation is very important between non-current and current. So as तो कोई भी जो ratios है उनमें कोई गड़बड़ी ना हो और कोई भी जो financial position है वो सही तरीके से accurately present की जाए. So how
to classify current and non-current. So first of all, non-current assets will be bifurcated on the basis of their time period, how they will be, in what time they will be recovered. So assets जो कि 12 महीने के बाद में, ड्यू डेट जो रिपोर्टिंग डेट है उसके 12 महीने के बाद में, 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट रिकवर हो जाएंगी, उन्हें हम लोग नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे। एंड करंट एसेट्स यानी कि दोस्त जो कि रियलाइज हो जाएंगे या सोल्ड कर देंगे, जैसे कि फिनिश्ड गुड्स जो कि हम 12 महीने 12 मंथ्स के अंदर अंदर सोल्ड कर देंगे या कंज्यूम कर लिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स। एंड which the current assets mean those जो liquid है, जो बहुत ज्यादा liquid है, जो जल्दी liquidate हो जाएंगी, जो recover जल्दी हो जाएंगी, तो those are current assets. So let's continue to the non-current assets. So first of all, जो हमारी जो non-current assets है उनको हमें अलग अलग categories में classify करना पड़ेगा, जो कि listed in schedule 3 में जो explained है कि इस तरीके से उसको categories में bifurcate करेंगे। Firstly, property, plant and equipment, intangible assets, capital work in progress, intangible assets जो कि under development है, and then financial assets and financial and other assets like non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances जिनकी maturity 12 महीने से 12 months से ज्यादा की, and other non-current assets. Moving forward to property, plant and equipment. So प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस दोज असेट्स जो कि हमारे बिजनेस में, प्रोडक्शन में या बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है, जो हमारी जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज है उसको आगे बढ़ाने में, जो उसकी, जैसे कि हम लोग कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करें, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है जो कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उस चीज में जो असेट हमारी हेल्प कर रही है वो हो गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसको भी अब जो इसको भी हमें नोट्स टू अकाउंट्स में बाइफरकेट करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लैंड लीज, वेदर इट इज लीज होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड, बट what is important to be noted is if the land or building is lease hold, then उसको एक स्पेसिफिकली अलग से हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई वो लीज होल्ड है, फिर हमने उसको लीज पे लिया। देन बिल्डिंग्स, प्रॉपर प्लांट एंड इक्विपमेंट लाइक कोई भी मशीनरी जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, फर्नीचर फिक्सचर्स, व्हीकल्स जो कोई हमारे पास हमारे बिजनेस में है, ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड अदर्स जो कि अगर हमारे पास कोई अदर एसेट होगी उसको स्पेसिफिकली उसका नेचर स्पेसिफाई करेंगे कि दिस इज द एसेट जो हमारी हेल्प, जो हमारे पास है टेंजिबल एसेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, जब हम डिस्क्लोजर देते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में पीपीई का, तो उसका एक पूरा रिकंसिलिएशन बनाया जाता है। जैसे कि पहले ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास था ग्रॉस अमाउंट, लाइक अगर उसके बाद में कोई भी एडिशन हो रहा है या फिर कोई भी डिस्पोजल हो रहा है, कोई भी सेल हमने अगर कोई भी असेट का किया है या फिर अगर हमने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है, कोई भी मर्जर या अमालगमेशन हुआ है, तो उस चीज में जो कोई भी बिजनेस एसेट हमने एक्वायर की उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। फिर अगर कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ है या कोई भी रिटर्न ऑफ किया गया किसी भी एसेट के अमाउंट को, तो उसको भी हम लोग उस तरीके से रिकंसाइल करते हुए वहां दिखाएंगे। एंड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेज अगर कोई है तो उसको पूरा रिकंसाइल करते हुए फिर क्लोजिंग बैलेंस पे जाएंगे। हम डायरेक्टली नहीं दिखा सकते कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये इतने की एसेट है, पूरा रिकंसिलिएशन बनना चाहिए उसको कि एंड ऑफ द पीरियड में हमारा नेट कैरिंग अमाउंट कितना है। अब ना कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, जैसे कि हमें रिवैल्यूएशन अगर हम कर रहे हैं या कोई भी राइट ऑफ कर रहे हैं किसी भी अमाउंट को एसेट के, तो उसमें क्या डिस्क्लोजर हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई भी रिवैल्यूएशन चेंज है, वो अगर आपकी नेट कैरिंग अमाउंट जो है पीपी की उसके 10% या उससे ज्यादा अगर इवैल्यूएशन चेंज आया है तो उसको हमें अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और सेम रिक्वायरमेंट कारों में भी है, अगर आपने देखा 10% से ज्यादा अगर वो है तो उसको वेरीफाई करना। देन एक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है कि आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अगर आपने वैल्यूएशन कराई है या नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अगर हम करा रहे हैं तो वो अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि असेट फिर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड हो सकती है। तो इसलिए मैंडेटरी नहीं है, बट आपको करवाना रजिस्टर्ड वैल्यूअर से चाहिए। और फिर ये डिस्क्लोजर भी आपको देना चाहिए कि वेदर इट इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर से है या फिर नहीं है। और अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से नहीं है तो उसका रीजन भी हमको लिखना चाहिए। ये आगे वाली स्लाइड्स में जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स है उसमें कवर्ड भी। देन अगर आपने कोई जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो आपके नेट कैरिंग अमाउंट का 10% या उससे ज्यादा का है, तो वो जो चीज है वो हमें नोट्स टू अकाउंट में जो 5 साल तक हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लाइक इस साल में अगर 2023 में अगर कोई भी रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो 10% से ज्यादा है, तो फिर उसको हमें अगले 5 सालों तक डिस्क्लोज करना होगा कि ये हमने अमाउंट रिवैल्यू किया था और इतना अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। पुलकित मित्तल।
separate disclosure for evaluation of property, plant and equipment is required when the change is option A 5% or more of the net carrying value, option B 8% or more of the net carrying value, option C 10% or more of the net carrying value, option D 15% or more of the net carrying value. Pulkit, टीम यूबी कौन कौन है वहां पे? So the answer is option C. कौन बोल रहा है? नवीन प्रजापत. और कौन कौन है वहां? सबके एक बार बोलना नाम. सर मैं Yes. आदित्य बंसल हूँ. यश कृपलानी सर है. खुशहाल सोमानी. सब है ना वहां पे? सर डिम्पल अग्रवाल। अच्छा, राधिका सर। ठीक. और क्या क्या नाम बताया? राधिका, ये कुशल, कुशाल, आदित्य, ये भी है. टीचर भी है. ओके ओके. वो उसने भी दिया ना सर? नहीं उसने नहीं. हैं? पुलकित नाम रख लो सर. ये प्रियांशी गोयल कहाँ जा रही है? चलो. Correct answer 10% or more of net carrying value. किसका? यहाँ से तेरे को क्यों? कैसे हो सकता है? अच्छा. चलो ठीक है. तो So moving forward to intangible assets. Intangible assets mean those rights या कोई भी ऐसी asset जो हमारे business में ही काम आ रही है लेकिन उसका कोई physical substance नहीं है. So अभी जो जैसा हमने intangible assets में bifurcation किया PPE, land and building etc. उसी तरीके से intangible assets also require classification. Now, it will be further classified in goodwill, brands or trademarks, computer software, mastheads and publishing titles, mining rights, copyrights, patents and other IPRs, recipes, formulae, model designs, license and franchisees and others which specify their nature. So, as required in the tangible assets, same requirement is there. Reconciliation आपको बनाना पड़ेगा पहले opening. तो कोई भी addition या disposal हुआ है, कोई भी business acquisition में अगर आपने कोई भी intangible assets लिए हैं, वो तो कोई भी amortization हुआ है या कोई impairment है वो, and then closing balance should be shown. What is important here is कि in intangible assets, AS 26 intangible asset does not permit to follow the revaluation method. That means कि आपको इसके valuation के लिए only cost model ही follow करना पड़ेगा. You cannot follow revaluation model. That means कि इसका कोई revaluation नहीं होगा. तो वो cost model पे होगा और सिर्फ impairment से उसकी value गिर सकती है. Moving forward, capital work in progress. So कोई भी tangible, it means that कोई भी tangible asset है जो हमारे पास कोई भी PPE हो गई और कोई भी other asset जो कि अभी work in progress में यानी कि उसका construction अभी चल रहा है वो अभी तक बनी नहीं है तो उसे भी हम capital work in progress एक अलग head में दिखाएंगे हमारे non current assets के अंदर. ये बता दी कि आपकी जो fixed asset है जो अभी भी construction में चल रही है उसकी कितनी cost अभी तक लग चुकी है और आगे और मतलब कितनी cost लग चुकी है और अभी हमारे लिए वो इतनी value की है. इसको हम अब what is the main thing is here is capital advances. ये capital advances और capital work in progress दोनों अलग अलग चीज है. तो क्या कोई बताएगा capital advances क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी लोन या एडवांसेस आपने किसी को दिए हैं कि उसका पर्पस ये है कि वो कैपिटल गुड्स या फिर कोई भी असेट पर कोई भी नॉन करंट असेट्स परचेज या कंस्ट्रक्ट करेगा. तो ये जो चीज है कैपिटल एडवांसेस और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से बिल्कुल अलग है. यानी कि एक लोन है उस तरीके से बट इट मे बी कंफ्यूज बिटवीन द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड एडवांसेस. तो दोनों अलग अलग चीज है और जो कैपिटल एडवांसेस वो अलग से लॉन्ग टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म एडवांसेस के हेड में अलग से दिखाए जाएंगे जो कि शेड्यूल 3 ने प्रिस्क्राइब किया. So basically it is an advance for acquisition or construction of the Capital asset and fixed assets, non-current. property plant. Now it's in the same manner the intangible assets under development जैसे कि tangible होता है उस तरीके से intangible asset. लेकिन AS 26 intangible assets क्या प्रिस्क्राइब करता है कि दो कैटेगरीज हो जाती है जब कोई intangible assets को हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं. एक हो जाता है रिसर्च फेज एंड उसका दूसरा फेज है डेवलपमेंट फेज. अब रिसर्च फेज में क्या होता है कि आपके पास कोई आइडिया है
और वो आइडिया फीजिबल मतलब आइडिया आप आगे बढ़ा सकते हो या नहीं उस चीज के बारे में आप सोच रहे हो। तो उस रिसर्च में कोई भी एक्सपेंस होते तो हम उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट नहीं मान सकते, उसको हम लोग पीएनएल में हमेशा एक्सपेंस आउट करते हैं। एंड एज और उसके बाद में अगर वो रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो उसको अगर हम उसका आगे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या आगे फर्दर डेवलपमेंट में उसमें कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसमें भी हम उसको इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। ये AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स बताता है। इसकी कंडीशन हो गई कि अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी है, आपका इंटेंट है उसको आगे डेवलप करने का, क्या उसको हम लोग आगे बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, या फिर वो जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है उसको कंस्ट्रक्ट करना। तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो ही हम लोग उसको उस असेट को या जो आप इंटेंजिबल एसेट या कोई आइडिया डेवलप कर रहे हो उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में लिखेंगे। या आप उसको यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये फर्दर कंडीशंस है जो आपको कंप्लाई करनी चाहिए AS 26 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 में नहीं, AS 26 में। मूविंग फॉरवर्ड, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो अभी हमने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई भी एंटिटी है उसमें कहीं फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस चीज का क्लास वो भी लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि मोर देन 12 मंथ्स, तो वहां पर हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर लिखेंगे। अब नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इज 2 क्लासिफिकेशंस, एक वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द अदर वन इज अदर इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर कोई भी एंटिटी है, फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और उसने किसी और एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वो क्यों कर रखा है कि उसके बिजनेस को बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग हुई तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने सप्लायर को ही एक्वायर कर लिया ताकि जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो आगे मतलब मुझे कोई उसकी दिक्कत ना हो रॉ मटेरियल के लिए, तो इसलिए मैंने उसको एक्वायर कर लिया तो वो मेरे बिजनेस को बेनिफिट देगी, तो उसी चीज को हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उसके हमने जो शेयर्स एक्वायर किए उसका एक अलग से डिस्क्लोजर ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई होगा उसे। और जो अदर इन्वेस्टमेंट्स अगर हमने कोई कर रखे किसी और कंपनी या एंटिटी के शेयर्स परचेज कर रखे जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है उसे हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे। फर्दर इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में। ये सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है प्रॉपर्टी की, हमने कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो उसे अलग से क्लासिफाई करेंगे। फिर इक्विटी एंड शेयर, फिर डेट एंड फिक्स्ड इनकम वाली कोई सिक्योरिटीज होगी, जैसे आपने गवर्नमेंट की कोई ट्रस्ट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट या ट्रस्ट सिक्योरिटीज परचेज की, डिबेंचर्स या बॉन्ड, या फिर आपने कोई फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड्स और पार्टनरशिप फंड, तो उनको हम सेकेंडरी क्लासिफाई करेंगे इस तरीके से। वन मोर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड विच इज मैंडेटरी कि अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट का आपको नाम भी लिख के देना पड़ेगा कि हमने इतने शेयर्स परचेज किए हैं इस एंटिटी के अंदर या इस कंपनी के अंदर। ये मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है, जिससे पता चलेगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और वेदर वो ये भी दिखाना होगा कि वो एसोसिएट है, हमारी सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, या फिर इट मे बी कंट्रोल्ड स्पेशल पर्पस एंटिटी, दैट इज कि हमने कोई स्पेशल पर्पस के लिए कि हमें इतना ये पर्पस था हमारा कि सप्लाई के लिए, तो हम वो भी दिखना पड़ेगा कि हमने ये चीज के लिए इसको इन्वेस्ट किया है इसमें। ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी है। साथ में अगर हमने कोई पार्टली पेड अप है वो फिर फुल्ली पेड अप है, जैसे हमने शेयर्स परचेज किए तो वेदर इट इज पार्टली और फुल्ली, तो ये चीज भी हमें वहां डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। या इस एंटिटी के अंदर हमने इतने शेयर्स परचेज किए हैं और ये हमारा जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट है और इतने शेयर्स पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है। और ये जो वैल्यूएशन है इसका, जो भी हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यूएशन होगा एज पर AS 13 एंड AS 13 प्रिस्क्राइब्स की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कॉस्ट पे ही कैरी आउट किए जाएंगे, अदर देन टेम्पररी अगर कोई डाउनफॉल आता है वैल्यू में, मतलब कोई हमेशा कॉस्ट पे कैरी आउट होंगे। और अगर कोई चेंज इस तरीके से आया कि वो अदर देन टेम्पररी है यानी कि परमानेंट चेंज है कि भाई वो वैल्यू गिर चुकी है, अब इससे ज्यादा उसमें मतलब इतनी वैल्यू गिर रही है अब ये ऊपर नहीं जाएगी, तो फिर उस चीज को हमें वहां दिखाना ही पड़ेगा और उस लोअर वैल्यू पे हमको उस इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यूएशन बेसिस है ये भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की रिपोर्ट के थ्रू वैल्यूएशन की। अगर नॉन कॉस्ट वैल्यूएशन होता है तो क्योंकि वैल्यूएशन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का हमेशा कॉस्ट पे ही होगा एज पर AS 13। फर्दर और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा है वो कोटेड इन्वेस्टमेंट है या अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है। कोटेड इन्वेस्टमेंट यानी कि लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो अगर हमने तो हमें डिस्क्लोजर इस तरीके से करना है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें जितने भी कोटेड है उनको एग्रीगेट करके लिखना है और जितने भी अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स है उनको भी एग्रीगेट करके लिखना है और इस तरीके से उनका डिस्क्लोजर देना है। और अगर उनमें कोई भी वैल्यू में डिमिनिशन आता है, जो कि अगर
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसमें वो अदर देन टेम्पररी होगा, तो उसका जो भी डिडक्शन आया, जो भी डिमिनिशन इन वैल्यू हुआ एज अ प्रोविजन दिखा के या फिर एज रिडक्शन हमको उसको दिखाना पड़ेगा कि डिक्लाइन हमारी वैल्यू में इतना है, और फिर जाके हमने इस पे वैल्यू किया है। और फर्दर अगर हम जैसे ये सब जो रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट में अगर हमने किया है तो, लेकिन अगर हमने कोई पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किया है तो उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको जितना भी जिस फर्म में आपने इन्वेस्ट किया है उसमें आपको फर्म का नाम एंड फर्म के पार्टनर्स का नाम भी लिखना पड़ेगा। और इसके एडिशन में जो भी उसमें कैपिटल है वहां के उस फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और उनका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर है, वो भी उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें कि हाँ इस फर्म में हमने इन्वेस्ट किया, इसके इतने पार्टनर्स हैं और उनका इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो कि हमने किसी को लोन दे रखा है, तो इसमें हमें 3 बाइफर्केशन करने होंगे। 3 कैटेगरीज में बाइफर्केट किया गया है। पहला कैपिटल एडवांसेस, जो एडवांसेस मैंने किसी और को दिए हैं और वो उससे पीपी प्रोक्योर करेगा या कंस्ट्रक्ट करेगा, दैट इज कैपिटल एडवांसेस। देन लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, अगर हमने कोई रिलेटेड पार्टीज को कोई भी एडवांसेस या लोन्स दे रखे हैं तो उसका बाइफर्केट, उसका जो डिस्क्लोजर है वो डिटेल मैनर में किया जाएगा। और एस 18 के अकॉर्डिंग कि रिलेटेड पार्टी तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर किस तरीके से होगा, एस 18 ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग, एंड वो अलग से बाइफर्केट करके हम दिखाएंगे। फिर लास्ट थर्ड वन इज अदर लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए या कोई टैक्स एडवांसेस है जो हमने दिए है और हमको लगता है कि वो बाद में रिकवर हो जाएगा, तो वो भी आफ्टर 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म है क्योंकि, तो इसलिए उसको हम अदर लोन्स एंड एडवांसेस में क्लासिफाई करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कुछ और फर्दर डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है, जैसे कि अभी जो जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस उसको हम सब क्लासिफाई करेंगे इनटू 3 डिस्टिंक्ट टाइप। सिक्योर्ड, जो कि गुड कंसिडर्ड गुड है, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड कि जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है लेकिन फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि वो रिकवर हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे ट्रेड रिलेशन है या फिर जो मतलब एज पर द एस्टिमेशन, एंड डाउटफुल कि हमें लग रहा है कि वो रिकवर होंगे ही नहीं, तो इस 3 तरीके से उनको बाइफर्केट करेंगे, सब बाइफर्केट करेंगे। फिर अगर सेकेंडली कि अगर हमने कोई भी बैड या डाउटफुल डेट्स के लिए, बैड या डाउटफुल अमाउंट के लिए हमने कोई प्रोविजन बनाया तो उसको भी अलग से डिस्क्लोज करेंगे, ग्रॉस अमाउंट, फिर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन है वो, एंड देन नेट अमाउंट। फिर कोई भी ड्यूज है जो डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के लिए है तो उसको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज किया जाएगा, जैसे कोई भी इंटरपर्सनल लोन्स है क्योंकि डायरेक्टर्स या अदर ऑफिसर्स को दिए क्योंकि एज वो हमारी रिलेटेड पार्टी है, वो भी हम वहाँ डिस्क्लोज करें, पर उसको सब बाइफर्केट करेंगे, जैसे कि एक डायरेक्टर्स को दिया या ऑफिसर्स ऑफ कंपनी को, और जो अदर रिलेटेड पार्टीज हो गई, अदर रिलेटेड पार्टीज यानी कि कोई भी डायरेक्टर जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर जो किसी और फर्म में या किसी और एंटिटी में पार्टनर है या मेंबर है तो उसको अलग से दिखाएंगे। मतलब रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर ऐसे हो गया, एक तो डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और दूसरा जो भी रिलेटेड एंटिटीज हो गई वो हो जाएगा, तो इस तरीके से उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर मूविंग फॉरवर्ड टू अदर नॉन करंट एसेट्स, विच इज कोई भी ऐसी नॉन करंट एसेट जो पीछे कवर नहीं हुई, कोई अदर नॉन करंट एसेट होगी तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी, जैसे कि लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जो हमारे रेगुलर बिजनेस में है, लाइक हमने कोई भी गुड्स सोल्ड किए जो हमारे नॉर्मल बिजनेस फैक्टर्स में है और उसकी रिकवरी हमको ऑपरेटिंग साइकिल या फिर जो हमारी 12 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है उसके बाद में रिकवर होंगे, वो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ कवर होंगे। कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल नहीं लाइक हमने अपनी मशीनरी किसी को बेची या कैपिटल गुड्स बेचे, अब वो अगर हमको 12 महीने के बाद रिकवर हो रहा है वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है वो इसमें नहीं। फिर कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट, हमने कोई भी डिपॉजिट कहीं पे दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि ये हम कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो वो यहाँ पे कवर होगा। कोई अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हो गए वो भी इसमें कवर्ड हो गए, एंड कोई अदर नॉन करंट एसेट जैसे कि अभी जो मैंने कैपिटल एसेट का एग्जांपल लिया कि हमने किसी को कैपिटल एसेट बेची तो वो इसमें कवर होगा।
फर्दर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है नॉन करंट असेट्स की, कि इनको भी हमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, सब क्लासिफाई करना पड़ेगा। सिक्योर्ड जो कि कंसिडर्ड गुड है, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, एंड डाउटफुल जिनकी रिकवरी अनसर्टेन है, हमें नहीं मतलब रिकवरी नहीं हो सकती। फिर कोई भी बैड एंड डाउटफुल डेट्स का अगर हमने कोई अलाउंस किया, कोई प्रोविजन बनाया, उसको भी वहां पे दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड वही जो रिलेटेड पार्टी वाला डिस्क्लोजर है कि सबसे पहले अगर कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को ड्यू है वो, एंड कोई रिलेटेड एंटिटी है तो उसका अलग से डिस्क्लोज करेंगे। जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स थे, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, जो भी हमने अदर नॉन करंट असेट्स में देखा, हमका एक एजिंग शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि ट्रेड पेबल्स में बनाया जाता है सेम, उसी तरीके से हमें एक एजिंग शेड्यूल ट्रेड रिसीवेबल्स का भी बनाना है, जिसमें हमें बाइफरकेट करेंगे 4, अनडिस्प्यूटेड गुड, अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड गुड, अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल, जो कि लेस देन 6 मंथ्स है, 6 मंथ से 1 ईयर तक है, 1 से 2 years, 2 से 3 एंड मोर देन 3 years। तो ये जो एजिंग है ये भी ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी, और इन केस आपके पास ड्यू डेट नहीं है तो वो इनवॉइस डेट से की जाएगी। और कोई भी जो अनबिल्ड ड्यूज है तो उसको रिकनसाइल करने के लिए, कि हमारे फेस पे जो अमाउंट है और जो यहाँ पे हम जो एजिंग शेड्यूल में लिखा रहे हैं उसको रिकनसाइल करने के लिए एक अनबिल्ड अमाउंट का अलग से सेपरेटली यहाँ पे डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, एक अलग से कॉलम बना के, ताकि वो रिकनसाइल हो सके। एक सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे भी जो ही आप देखते हो कि साहब मोर देन 1 ईयर आ रहे हैं, 6 मंथ्स आ रहे हैं, या 2 to 3 years आ रहे हैं, मोर देन 3 years आ रहे हैं, देन अगेन इट इज ए मैटर ऑफ इंक्वायरी, ये इतने टाइम में से क्यों आउटस्टैंडिंग है, एंड देन हो सकता है उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोविजंस करने की जरूरत हो, या हो सकता है कोई डिस्प्यूटेड हो और अपने को पता नहीं कि डिस्प्यूट है, तो दैट इंक्वायरी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड, एंड वंस दे आर डिस्प्यूटेड so there are more chances of doing a provision. कोई चीज डिस्प्यूटेड है तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये अपने आप में एक मोमेंट, दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विद यू, एजिंग से रिलेटेड, है ना, क्योंकि हमने को कैपिटल डब्ल्यूआईपी की भी एजिंग बतानी है, जैसा उसने बताया था, फिर ट्रेड पेबल्स की भी एजिंग बतानी है, ट्रेड रिसीवेबल्स की एजिंग बतानी है। तो ये जितने भी एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आई है by 2022 notification. So each of the informations give you some clue for your audit. कि अरे यार ऐसा क्यों है ना, किसी के नाम में टाइटल डीड्स नहीं है, वो डिस्कस कर लिया ना आपने, आगे आप डिस्कस करेंगे। तो देन यू नीड टू सी कि टाइटल डीड क्यों नहीं है, कोई और रीजन तो नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग द डिस्क्लोजर्स, देयर शुड बी सम ऑडिट आल्सो इंक्रीज्ड। यस। Now covering the current assets. तो जैसे कि हमने नॉन करंट असेट्स को अलग अलग आइटम लाइन आइटम्स में बाइफरकेट किया, उसी तरीके से करंट असेट्स विल आल्सो बी बाइफरकेटेड। Firstly, current investments, so short-term investments which are expected to be realized within 12 months. Inventories like raw material, WIP, work in progress, and finished goods held for sale. Trade receivables amount due from customers. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड अदर करंट असेट, जो कि ऊपर किसी भी कैटेगरी में कवर्ड नहीं है, वो अदर करंट असेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन किस तरीके से होता है? तो करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोस जो कि इंटेंडेड है कि वो 1 साल से ज्यादा, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर उनको हम सेल आउट करके अमाउंट रिकवर कर लेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा? वेदर वी हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और डिबेंचर्स। लेकिन नॉन करंट असेट्स में इट वाज कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इट वाज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट, दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। करंट इन्वेस्टमेंट में ओनली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, म्यूचुअल फंड्स में क्या है, डिबेंचर्स में क्या है वो। अब वैल्यूएशन किस तरीके से होगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन इज बेसिस फॉर वैल्यूएशन, आपने किस तरीके से वैल्यू किया है, उसको वैल्यूएशन किस तरीके से किया है, रजिस्टर्ड वैल्यू के थ्रू या फेयर मार्केट वैल्यू देख के, वो चीज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एडिशनली जो आपने बाइफरकेशन किया उसके अलावा। फिर एग्रीगेट, जो जैसा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में था कि आपको कोटेड इन्वेस्टमेंट है उनको टोटल एग्रीगेट करके दिखाना है, फिर जो कोटेड एंड अनकोटेड उनको दिखाना है, और जो भी उनमें वैल्यू में डिमिनिशन आया उसको भी अलग तरीके से डिस्क्लोज करना है, तो वो भी यहाँ सेम रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पर AS13 क्या बोलता है कि जो अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स है उनको कॉस्ट या फेयर मार्केट फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखाना होता है। तो इस वो जो डिमिनिशन इन वैल्यू उसको भी अलग से वहां डिस्क्लोज किया जाएगा।
फिर इन्वेंट्रीज, नाउ इन्वेंट्रीज में भी हम फर्दर बाइफर्केशन करेंगे, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स जो कि पीपी की डेफिनेशन को कवर नहीं कर रहे हैं, एंड अदर्स। पीपी लूज टूल्स जो पीपी की डेफिनेशन को कवर करेंगे दैट विल बी पीपी, एंड अदर्स जो कि स्मॉल वैल्यू के हैं वो हम लोग यहाँ करंट इन्वेंट्रीज में कवर कर लेते हैं। अब इनका जो वैल्यूएशन का मोड है वो भी क्लियरली स्टेट किया जाना चाहिए कि हमने इस तरीके से वैल्यू किया, क्योंकि रॉ मटेरियल्स जो किस वैल्यू पे हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। एंड जो कोई गुड्स, वन पॉइंट टू बी नोटेड इज गुड्स इन ट्रांजिट। अगर कोई गुड्स है जो ट्रांजिट में हमने परचेज तो कर लिया बट वो अभी डिलीवर हो रहे, तो उनको उनकी जो स्पेसिफिक कैटेगरीज है लाइक रॉ मटेरियल है तो वो रॉ मटेरियल में गुड्स इन ट्रांजिट करके डिस्क्लोज करेंगे। स्टॉक इन ट्रेड है कि हमने फिनिश गुड्स, अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है तो अगर हमने कोई फिनिश गुड्स परचेज किए तो उसको भी हम आज स्टॉक इन गुड्स इन ट्रांजिट के रूप में अलग तरीके से डिस्क्लोज करेंगे सेपरेटली, वही उसी हेड के अंदर। नाउ अगर कोई मेन्यू किस तरीके से, मतलब शेड्यूल 3 है वो अलग अलग एंटिटीज को किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री डिस्क्लोज करनी है वो बताएगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है तो उसमें एडिशनली हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल तो हमारे स्टॉक में दिखाएंगे, फर्दर हमको रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है वो हमारे पीएनएल में डिस्क्लोज करेंगे। जैसे हम पीएनएल बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, तो वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को वहाँ लिखना होता है। फिर अगर कोई गुड्स जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम उनको सोल्ड भी करते हैं तो उस चीज के बारे में भी हम वहाँ कितना हमने परचेज किया तो वो पीएनएल में वहाँ डिस्क्लोज होता है ऑन द फेस ऑफ इट। फिर ट्रेडिंग कंपनीज अगर आप है तो आपने कोई गुड्स परचेज किया तो जो परचेज किया आपने, जो ट्रेड किए गुड्स ट्रेडेड, वो उसके हेड में जाएगा। एंड जो अदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि सभी कंपनी को डिस्क्लोज करना है वेदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, कोई भी जो चेंजेस इन इन्वेंट्री आए जिससे क्या होगा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का इफेक्ट आ जाएगा तो वो भी डिस्क्लोज पीएनएल में होगा। एंड कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस हो या स्टॉक इन ट्रेड हो या रॉ मटेरियल हो, दोनों का जो चेंजेस है वो वहां पर ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। टीम मंगलम, टीम मंगलम पे कौन कौन बैठे हैं? यस सर। सर धीरज, मीत, क्रिश और भावना। धीरज, मीत और क्रिस और भावना। यस सर। पहले क्वेश्चन बोलो आप चारों, क्या है? सॉरी, आंसर दो इसका। सर आंसर इज सी, डिस्क्लोज्ड अंडर द रेलेवेंट सब हेड ऑफ इन्वेंटरीज। भावना सही है ना ये आंसर? यस सर। Not trade receivables. A receivable will be classified as a trade receivable if it is the amount due which is going to be recovered within 12 months from the reporting date, and वो recover हो रहा है हमने क्योंकि हमने हमारे जो normal business है उसमें goods या services render किए। अब ट्रेड रिसीवेबल इज कंसिडर्ड एज करंट, वो अगर अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल या 12 मंथ्स के अंदर रिकवर हो रहा है तो वो। एंड नाउ हमें डिस्क्लोज सब क्लासिफिकेशन हमको इसका करना पड़ेगा, सिक्योर्ड जो कंसिडर्ड गुड है, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड एंड डाउटफुल। फिर इसमें डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई भी हमने बेड या डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाया तो उसको एक सेपरेट डिडक्शन के रूप में दिखाएंगे, पहले ग्रॉस फिर जो डिडक्शन है वो, एंड उसके बाद में जो नेट अमाउंट है वो अपना डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, पूरा रिकंसिलिएशन दिखाना है। एंड एजिंग शेड्यूल, जो ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल है वो भी बनाना पड़ेगा एज जो अमेंडमेंट है उसके बाद मैंडेटरी है। जो एक ही शेड्यूल है जो अपने लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स में था वही वाला जिसमें 6 मंथ से लेस देन 6 मंथ्स, फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर, उस तरीके वो ट्रेड रिसीवेबल में भी वही जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को क्लासिफिकेशन होगा बैंक बैलेंस, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड एंड अदर, जैसे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो गए जो कि रिकवर्ड है विद इन 3 मंथ्स। फिर लेकिन एक की रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स ये है कि आपके पास अगर कोई भी एम्बार्क्ड बैलेंसेस है, यानी कि कोई भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी डिविडेंड पे करना है तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है, तो वो चीज आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करनी कि हमारे यहाँ बैंक बैलेंस में इतना अमाउंट इस चीज के लिए। फिर सेकेंड वन इज मार्जिन
मनी और सिक्योरिटी, यानी कि अगर हमने कोई भी बोरिंग्स लिए या कोई गारंटी दी है तो उसमें हमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट, अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है, मिनिमम अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए, तो वो भी डिस्क्लोज करना होगा कि इतना अमाउंट हमारे बैंक में है, ताकि लेंडर को ये श्योरिटी रहे कि इतना अमाउंट तो इनके पास अभी लिक्विड है, कैश अवेलेबल है। फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट विच आर मोर देन 12 मंथ्स मेच्योरिटी, इसको हमें नॉन करंट अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे पास बैंक बैलेंस है, लेकिन वो क्योंकि हम बाद में रिकवर करेंगे क्योंकि वो डिपॉजिट है, तो इसलिए उसको हम लोग अदर नॉन करंट असेट्स में दिखाएंगे। एंड कोई भी अदर रिस्ट्रिक्शंस है कि हम इस बैलेंस को यूज नहीं कर सकते या इतना बैलेंस यूज नहीं कर सकते, तो वो भी हमें अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। क्वेश्चंस फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट? प्रियांशी गोयल। As per Schedule 3 of Companies Act, bank deposits should be disclosed separately when their maturity period is option A more than 3 months, option B more than 6 months, option C more than 12 months, option D more than 24 months. प्रियांशी। राघव खंडेलवाल and yes Gupta. Sir, answer is C, more than 12 months. Correct. Now, short-term loans and advances. So, it means loans and advances which entity has given and expected to realize within the 12 months या फिर कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर वो रिकवर हो जाएगा। तो इसमें भी वही क्लासिफिकेशन मस्ट मेन कैटेगरीज की लोन जो हमने रिलेटेड पार्टीज को दिया है एंड जो अदर्स को दिया है उस तरीके से वो हमें दिखाना पड़ेगा। लाइक तो क्लासिफिकेशन हो गया एक रिलेटेड पार्टीज, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज एंड टू अदर्स। अदर्स में भी शुड बी स्पेसिफाइड कि हाँ इस बैंक इसको दिया है या इस एंटिटी को दिया है, इस बैंक को दिया है। फिर सब क्लासिफिकेशन सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड विच इज नॉट अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड एंड डाउटफुल। अब इसमें ये चीज है सिक्योर्ड जो है तो उसमें हमने जो भी कोलेट्रल है वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज से वो सिक्योर्ड है। एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट अलाउंस डिस्क्लोजर, यानी अब अगर हमने कोई बैड या डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाया है तो नेट ऑफ करके हमें दिखाना पड़ेगा। एंड जो कि लॉन्ग टर्म एडवांसेस में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सेम रिक्वायरमेंट्स जो बैड एंड डाउटफुल वाली है वो करंट वाले पे लगी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। डिस्क्लोजर विच इज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का मतलब एनीवन? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी future uncertainty, Occurrence and non-occurrence of any event. uncertainty. अगर exactly वो account नहीं internal account. So depends on ये occurring on non-occurring of any event. So as per AS 29, those contingent liability, तो जो शेड्यूल 3 है वो मैंडेट करता है कि आपको अगर कोई भी ऐसी contingent liability है तो उसको फेस पे नहीं, क्योंकि आप उसको लाइबिलिटी कंसिडर नहीं कर रहे तो वो आपकी लाइबिलिटी में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होगा कि ये हमारी contingent liability है इतने अमाउंट की। फिर कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स यानी कि अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसके बाद अब हमें पेमेंट करना है तो वो हो गया कमिटमेंट, लेकिन वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो हो गई कमिटमेंट, और वो कैपिटल कमिटमेंट हो गई या कोई अनकॉल्ड लाइबिलिटी हो गई कि अभी तक मतलब हमारी कमिटमेंट तो है कि हमें पे तो करना ही है अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है तो वो हमारी कमिटमेंट है, तो उससे हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि फ्यूचर में भी एक्सपेंस या एक लाइबिलिटी इनकर करेंगे। तो ये बल्कि ये श्योर्ड है क्योंकि कमिटमेंट हमें, अगर हमने कोई शेयर परचेज किया तो अमाउंट तो पे करना ही है, तो वो एक अलग तरीके सेपरेटली डिस्क्लोज होगा। एंड कोई भी नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज की जाए। These are some additional reporting requirements जो कि
हमें अलग से दिखानी होगी, जो हमारी नोट्स हो गई या हमारे जो बैलेंस शीट हो गई, उसके अलावा एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि एक स्पेसिफिकली जो एमसीए नोटिफिकेशन आई थी उसमें बताया गया था कि ये डिस्क्लोजर जरूरी है। फर्स्ट वन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक टाइटल डीड्स आपको जो है वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एंटिटी के पास है तो वो एंटिटी के ही नेम में होनी चाहिए, अगर जनरल परसेप्शन देखे। लेकिन अगर वो एंटिटी के नेम, टाइटल डीड्स एंटिटी के नेम पे नहीं है तो वो क्यों नहीं है, तो उसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर एडिशनली आपको देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने इस दिन परचेज करी थी और ये हमने क्यों नहीं परचेज करी, मतलब हमारे नाम पे टाइटल डीड क्यों नहीं है और ये किसके नाम पे टाइटल डीड है। ये चीज हमें अलग से डिस्क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर विल बी कि मेरे बैलेंस शीट में तो हमें एसेट दिख रही है लेकिन वो आपकी टाइटल डीड में क्यों नहीं है, तो वो एक इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, उसे पता होना चाहिए। फिर द सेकेंड वन इज की रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, की अगर आपने 10% से ज्यादा कोई भी जो रिक्वायरमेंट थी 10% वाली की 10% ज्यादा तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू होनी चाहिए, तो अब वो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू हुई है या नहीं हुई है रिवैल्यूएशन, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट रिक्वायरमेंट ये है क्योंकि वो सही तरीके से वैल्यूएशन करेगा, तो इसलिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने इस कारण से वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से नहीं करा। थर्ड वन इज बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स। बेनामी प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का यूज तो एंटिटी कर रही है लेकिन उसका पेमेंट किसी और ने किया है और वो रजिस्टर्ड या फिर वो जो परचेज की गई है वो इनवॉइस है वो भी उसी दूसरी पर्सन के नाम पे, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी पे आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है या नहीं चल रही है उस चीज के बारे में बताना होगा, और क्या आपके पास ऐसी कोई बेनामी प्रॉपर्टी है वो भी आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास है। और फर्दर आपको ये भी बताना होगा कि क्या वो आपके असेट्स में मतलब वो असेट्स में है या नहीं दिख रही है। अगर असेट्स में दिख रही है तो वो पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि वो इस जगह पर दिख रही है, यहाँ पर क्लासिफाइड है। दैट इज कि कोई भी हिडन असेट्स नहीं होनी चाहिए, वो क्लियरली आपकी जो ट्रांजेक्शन उसको बताए कि हाँ ये असेट हमने ये किसी और ने परचेज की थी और कंसिडरेशन पे किया। फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट इज कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या जो इंटेंजिबल असेट्स हैं उनका एजिंग शेड्यूल भी हमारे पास होना चाहिए कि इतनी ये प्रॉपर्टी इतने टाइम से कंस्ट्रक्शन में चल रही है, तो वो पता चलेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी इतने टाइम से कंस्ट्रक्शन में, कई बार हो गया वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम हो गया कंस्ट्रक्शन से, तो वो शेड्यूल डिस्क्लोज करता है। तो हाउ इट द शेड्यूल विल बी लेस देन 1 ईयर, वन टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड एंड मोर देन थर्ड ईयर। अब नाउ इसमें एक जो बाइफर्केशन है वो ये है कि कोई टेम्पररी सस्पेंड तो नहीं हो गया कि, क्योंकि अब टेम्पररी सस्पेंड यानी कि उसको बीच में क्यों रोक दिया गया, तो इसलिए उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करके दिखाएंगे कि हाँ ये टेम्पररी सस्पेंडेड है। और टेम्पररी सस्पेंशन में क्या नहीं इंक्लूड होगा कि अगर वो मैंडेटरीली उसको रोकना है, जैसे फॉर एग्जांपल तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है तो उसपे जो भी आरसी है वो उसको उतने थोड़ी टाइम के लिए उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो रोकना पड़ेगा, तो इसलिए वो टेम्पररी सस्पेंशन में नहीं आएगा, वो मैंडेटरी पार्ट है उसका, तो वो अंडर डेवलपमेंट में ही है। And the same is with the intangible assets. Same aging schedule will be for intangible assets like software, patents, etc. So basically, आप जब भी ये information दो तो you need to ensure that these matches with the relevant balance which is there in the balance sheet also. क्योंकि आपको बाइफर्केशन वही देना है जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ रहा है, उसी का बाइफर्केशन देना है कि ये कब कब अल्टीमेटली कैपिटलाइज हो जाए। Next one, reporting requirements for loans and advances. So if loans and advances is given to related party or any other party or any entity, तो वो ही डिस्क्लोजर देना होगा कि ये हमने प्रमोटर या हमारे डायरेक्टर्स है, KMP या रिलेटेड पार्टी से इनको दिया है एंड अदर्स को, तो इससे हमें रिस्क, पोटेंशियल रिस्क पता चलेगा कि आपने कहीं किसी को प्रेफरेंशियली तो आपने किसी को लोन नहीं दिया है या फिर इंटरेस्ट फ्री, तो वो अलग से डिस्क्लोजर होगा उसका। एंड नेक्स्ट वन इज कि आपने कोई भी करंट असेट की सिक्योरिटी पे कोई लोन तो नहीं दिया। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उसमें आपने करंट असेट यानी कि आपने इन्वेंट्री को सिक्योरिटी पे, कोलेटरल पे लाके आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन दिया है तो उसका एक अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वन इज कि विलफुल डिफॉल्टर, कि आपको किसी बैंक ने या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने विलफुल डिफॉल्टर तो डिक्लेयर नहीं किया, तो वो आपको एक क्लियरली
डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर की विलफुल डिफॉल्टर कब डिक्लेयर किया गया एंड उसकी डिफॉल्ट क्या किए थे हमने, ऐसे हमने क्या क्या पेमेंट नहीं किया था, ऐसा क्या डिफॉल्ट किया गया था जिसके कारण बैंक ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया। फिर द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक ऑफ कंपनी रिलेशंस। आपने कोई स्ट्रक ऑफ कंपनीज मींस दोज कंपनीज जिनका नेम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर दिया। तो अब अगर आप उन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो क्यों मतलब क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो और कौन सी कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसका नेम सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई ट्रेड रिसीवेबल हो, ट्रेड पेमेंट हो, आपने कोई गुड सोल्ड किए हैं, वो ट्रांजैक्शन पूरा दिखाया जाएगा और आपका उसके साथ रिलेशन क्या है कि आप स्टॉक ऑफ कंपनीज के नाम कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो क्या रिलेशन है आपका कि आप, क्योंकि वो कंपनी ने अगर उसका नाम रिमूव हुआ है तो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट किया हुआ है, कुछ ना कुछ कंपनी का कॉन्ट्रावेंशन होगा, तो वो आप उसके साथ क्यों ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो एक इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, उसे पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई रिस्क ना हो उस ट्रांजेक्शन में, इसलिए वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। फिर बेसिकली ये स्टॉक ऑफ का क्यों आया, क्योंकि कंपनी हैज बीन स्टॉक ऑफ, दैट मींस एक्चुअली नो ट्रांजैक्शन कैन बी डन विद दैट कंपनी, बट उन कंपनीज के बैंक अकाउंट्स जो है वो फिर भी चालू रहे एंड द कंपनीज और अदर कॉर्पोरेट्स हैव यू नो continued the transactions with bank. Practically, the companies that have been struck off, with them there cannot be any transaction. So they wanted that even if they have been struck off, whether any transactions are there or not, so that you know they can have further investigations. कि भाई ये क्या transactions हो रहे हैं? Why companies are still having these struck off companies are why they are still having the transactions. तो इसके लिए basically, you know, as an auditor, suppose there are few companies, then you should check through MCA portal itself whether they are struck off or not. And if there are large number of companies, then in that case, you should ensure that what is the process of the auditee to find out that which companies are struck off companies. Because in market there are data available through which they can ascertain that these are the struck off companies or not. So the company has adopted that process or not. Next one is layering rule compliance. Or moment there are transactions with the struck off companies, it can be sometimes a suspicious transaction also. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज लेयरिंग रूल कंप्लायंस। लाइक कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफाई किया है कि 2 लेयर से ज्यादा कोई भी कंपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो अगर आपने उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया है किसी सब्सिडरी कंपनी के अंदर या आपकी कोई सब्सिडरी है इस तरीके से, तो वो आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने इतनी ये हमारी सब्सिडरी है और इसमें हमने इन्वेस्ट किया। एनालिटिकल रेशियोज जो हमारे करंट रेशो हो गए, डेट इक्विटी रेशो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये जितने भी रेशोज है जितने भी रेशोज है इन सबको कंप्यूट करके हमें एक एडिशनली डिस्क्लोज करना है कि ये रेशोज हैं। और अगर इन रेशो में पिछले साल से प्रीवियस ईयर से कोई भी 25% है उससे ज्यादा का चेंज आया है, 25% से ज्यादा का चेंज, तो फिर आपको वो डिस्क्लोज करना है कि ये चेंज आया है। फिर रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। अगर हमारी कंपनी पे कोई असेट है, उस पर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, हमने कोई लोन लिया था और उसको कोलेट्रल पे रखा है, तो अगर वो चार्ज क्रिएट हुआ है तो अगर हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि चार्जेस क्रिएट हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट, लेकिन अगर आपने नहीं कराया तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने स्टैट्यूटरी ड्यू डेट के विदिन हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या अगर कोई सेटिस्फेक्शन हो गया चार्ज का, यानी कि हमने लोन रीपे कर दिया तो उससे चार्ज रिमूव हो चुका है, तो वो अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर कंप्लायंस विद अप्रूव्ड स्कीम्स ऑफ अरेंजमेंट्स। तो अगर कोई भी अरेंजमेंट की स्कीम आपने स्टार्ट की है, लाइक कोई अमालगमेशन हो रहा है
या फिर कोई एक्विजिशन हो रहा है, तो उसमें कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको जो ऑडिटर है वो एक सर्टिफिकेट देगा कि जो आपने अकाउंटिंग आप करने वाले हो अमालगमेशन की या कोई भी अरेंजमेंट की, वो एज पर एएस है या नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। तो वो आपको डिस्क्लोज करना है कि आपने क्या अमालगमेशन या कोई अरेंजमेंट किया है और उसका इफेक्ट क्या निकला, अकाउंटिंग इफेक्ट, कि ये इफेक्ट उसका निकला, उसकी शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई या फिर रिजर्व एंड सप्रेशन को चेंज आया। तो वो आपको और ये भी दिखाना है कि हमने कंप्लायंस विद एएस किया है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम, लाइक अगर मैंने एक एंटिटी है, उसने किसी इंटरमीडिएट मतलब किसी को लोन दिया, अमाउंट दिया, और वो इंटरमीडिएट और वो फर्दर वो कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो आपको वो अमाउंट भी डिस्क्लोज करना है कि हमने इंटरमीडियरी, ये हमारा इंटरमीडियरी है और इसने इतना, हमने इसको इतना अमाउंट दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, और फिर वो इंटरमीडियरी ने कितना फर्दर वो अमाउंट आगे इन्वेस्ट किया, वो चीज भी आपको वहाँ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि ये अमाउंट है और ये आगे इन्वेस्ट किया गया है। Question for online participants. Aditya Bansal. As per Schedule 3 disclosure requirements, transactions with a struck-off company must be disclosed when they relate to which of the following: only purchases from a struck-off company, only loans given to struck-off company, any transaction with a struck-off company having an outstanding balance, only transactions approved by Board of Directors. Option C, any transaction with the struck-off company having an outstanding balance. Correct. Thank you. So I can just inform, maybe that in between, recently the result of IAS main exams have come, you must have noticed. And CA Sakshi Jain, who was Kalanin Company alumni, secured 37th rank in IAS exams. So she will be coming here. So maybe that first she will be meeting with the partners, and then I will try that she also address you all. So maybe that we take a halt in between this, and that time you can stop the recording. So, and all those who are present on the online, this can also stay on online only. So that, yeah. So I will be covering statement of profit and loss. उस फॉर्मेट में अपन जनरली देखते हैं पीएनएल के फॉर्मेट में 4 पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम एंड गेन्स, देन एक्सपेंसेस, then exceptional items, profit before tax, tax expenses, and then profit or loss from continuing, discontinuing operations and EPS. तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दो पार्ट्स में, फाइनेंस कंपनीज और नॉन फाइनेंस कंपनीज। नॉन फाइनेंस कंपनीज केस में जनरली रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू आएगा। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर वो नेट ऑफ टैक्स आएगा, एक ग्रॉस अमाउंट आएगा, डिपेंड करेगा हमारा एज अ रोल कि हम प्रिंसिपल है या फिर एजेंट है। मतलब हम अपने अकाउंट से पेमेंट करने वाले हैं, फिर एजेंट इंटरमीडिएट उनसे हम कस्टमर से लेंगे और आगे गवर्नमेंट को देंगे। अगर हम ऐसा एजेंट है तो भी हम नेट ऑफ टैक्स के बताएंगे, अदरवाइज एट ग्रॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, Hold for some time.